40 साला खातून को पहले रेप किया और उसके बाद उसको कत्ल किया। नाम क्या जी आपका? मोहम्मद हुसैन जी। कितने बच्चे ने जी 5 बच्चे, 4 बेटियां 1 बच्चा। ये जी बस मैं इकट्ठे होए ते वो आ गए ते साडी नीयत फिर गई। राबता जी तिन्हां दा ही फोनां ते आ। अच्छा फोना ते राबता सी। हाँ जी। एक ने भी नहीं रोकिਆ कि ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ? नहीं सर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, कोशिश की थी? नहीं। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। 40 साला खातून को पहले रेप किया और उसके बाद उसको कत्ल किया। कत्ल क्यों किया, ये सारा सिलसिला क्यों हुआ, ये 3 मुलजिमान जो कि पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ, नारंग पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया, यानी कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके। लड़की लाहौर की थी, सांदे की रहने वाली, लेकिन ये तीनों यहाँ के थे, ज़िला शेखुपुरा। इनसे मैं बात करूँगा कि ये सिलसिला कैसे हुआ। इसमें एक की उम्र बहुत ज़्यादा है, इनके अपने भी बच्चे होंगे, बेटियाँ होंगी, सिलसिला है, ज़िंदगी है। नाम क्या जी आपका? मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद हुसैन, कितने बच्चे ने? जी 5 बच्चे। माशाल्लाह। ਉਹਦੇ 'ਚ बेटियां भी होंगी? जी 4 बेटियां 1 बच्चा। बेटियां ਦੀ तादाद ज़्यादा है? हाँ जी। ठीक है। एक किस तरह कीता सारा कुछ? ये जी बस मैं इकट्ठे होए ते वो आ गए ते साडी नीयत फिर गई अच्छा ते साडे को सर गलती हो गई अच्छा ते माफ़ी ਦਿੱਤੀ जाए। अच्छा 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 इन्नी जल्दी माफ़ी भी ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? जी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਨੱਸਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਏਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਕਰੀਏ, ਮੁੜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਫ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਆਬਦ ਸਰ। ਆਬਦ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ? ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਦਰੇ ਚ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਦਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਪਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ। ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ? ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਨਹੀਂ ਡਏ ਆ ਨਾ ਸਰ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ ਸਰ। ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਸ਼ਬੀਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਸ਼ਬੀਰ, ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬਾ है। और यकीन करें कि मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं अगर इस किस्म के तल्ख सवाल करूँगा तो तब भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन करने पड़ते हैं। काम ही कुछ ऐसा है। ये बदनामी की हथकड़ियाँ अल्लाह ताला हर इंसान को इससे दूर रखे। और इस किस्म का क्राइम
कि किसी का रेप कर देना और उसके बाद उसको मर्डर कर देना, कत्ल कर देना। और इसमें ये बड़ा ब्लाइंड केस होता है इस किस्म का, और इसमें पुलिस को बड़ी मदद दरकार होती है। अब देखें ना, ये 3 मुल्ज़िमान थे, इनको अलग अलग जगहों से पकड़ा, मेहनत के बाद ये पकड़े गए हैं, और अब ये शॉर्टकट में कह रहे हैं कि गलती हो गई जी माफ़ कर दें, गलती हो गई जी माफ़ कर दें, गलती हो गई जी माफ़ कर दें। इन तीनों की ज़ुबान पर सिर्फ ये 2 ही लफ्ज़ हैं कि गलती होगी माफ़ कर दें। अच्छा, की होया सी सारा दसो जरा। सर जी मैं ड्राइवर हाँ, गड्डी चलाना। मैं तो नहीं पूछा होया की सी। कुछ भी मैंने उन्हें कॉल की, बस कॉल की वजह तो मैं विच ट्रेस होया हाँ, और अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। जाती की सी नहीं की है, नहीं की। अच्छा, इन्होंने रोकया क्यों नहीं होते फिर? मैंने इन्होंने को नहीं, ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਾਂਗੇ, ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਡੀਐਨਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? मैं सिर्फ गड्डी चलाता जी, गड्डी आंदे ने ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ? अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे जी 3 बच्चे हैं। ਬੱਚੀਆਂ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? बस जी फिर की कर सकते हैं। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ? हाँ जी, ਆ ਗਈ ਸੀ ਨੀਂਦ? हाँ जी। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਨੀਂਦ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਕੀ ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। नज़रें झुकी हैं, कैसे मिलाएं माशरे में, क्योंकि किरदार ही ऐसा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज यूज़ करूं, क्योंकि क्राइम ही ऐसा है। अगर इसने नहीं किया तो इसको चाहिए था कि इनको मना कर दे। अब इनकी उम्रें देख ले आप, या जवान होते 20-20 साल के लड़के होते तो गलती होगी माफ़ कर दे, समझ में थोड़ा सा आता है, 2% 3%। लेकिन इस उम्र में आकर हम इस किस्म का घिनौना काम करेंगे, इस किस्म का क्राइम करेंगे तो सोच फिर काम करना छोड़ देती है। ये हमारे माशरे का एक नासूर है, इस किस्म का क्राइम, जो कि आगे चलकर इसकी एक गंभीर तस्वीर आपके सामने आती है, जो कि अभी आपके सामने है। ये तल्ख है लेकिन ये हकीकत है। असल इस केस के हवाले से बताइएगा कि ये कहाँ से पकड़े गए, और पहले तो आपको मुबारक हो, इतनी बड़ी कार्रवाई आपने की और मुलजमान को ट्रेस करके पकड़ा है। ये कैसे पकड़े गए और ये मामला क्या है? मामला ये था कि 22 मई सन 2021 को एक डेड बॉडी मिली, उच्चा गांव पिंड है उसके रकबा से। ये टोटली ब्लाइंड मर्डर था। PFSA की टीम के ज़रिए मौका से शवाहद इकट्ठे किए, डेड बॉडी को शनाख्त के लिए सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें वायरल की, पोस्टमार्टम के लिए उसे भिजवा दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा सिर्फ 302 के तहत दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मरीज़ के भिजवाया। सोशल मीडिया के ज़रिए इतला पाकर मकतूला का भाई अमजद हॉस्पिटल में आया, उसने डेड बॉडी शनाख्त की। उसने बताया कि ये मेरी बहन साबरा की डेड बॉडी है, और इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन भी थे। जी, उसका पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि इसके जो पार्चात हैं वो सील करके दिए जाएं ताकि इनका भी फोरेंसिक करवाया जा सके। मौका से लिए गए शवाहद और पार्चात मकतूला के वो भिजवा दिए हमने, PFSA लाहौर में जमा करवा दिए। मकतूला के जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी हमने CDR लेना शुरू कर दी, जायब हुआ की जियो फेंसिंग करवाई। तो एक मकतूला का एक मोबाइल फ़ोन जो था वो चल पड़ा, उसकी CDR मिल गई। उसकी मदद से फिर हमने इन मुलजमान को जो है वो ट्रेस किया। हाँ, वो शबीर मुलज़म की आखिरी कॉल थी मकतूला के फ़ोन पे, तो इसकी CDR ली। फिर इसकी CDR लेने से पता चला कि इसके 2 साथी और भी हैं, मोहम्मद हुसैन और
आबद और शबीर दोनों जो हैं वो सदागरपुर इलाका थाना नारंग के रहशी हैं, और मोहम्मद हुसैन जो है वो मच्छर वाली गाँव है, ज़िला ननकाना में, थाना सदर शाहकोट में। वहाँ पे मोहम्मद हुसैन उसे लेके आया गया। वो एक किसी भी ज़िम्मेदार के पास, किसी ज़िम्मेदार के पास घर में घरेलू मुलाजमा थी। तो मोहम्मद हुसैन और उसका आप जब मुलाकात हुई या टेलीफोन के ज़रिए, इनका प्रोग्राम बन गया कि वो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, खुद छोड़ आता हूँ। नारंग मंडी आए हैं, वहाँ वक्त बेगाह हो चुका था, सवारी कोई मिल नहीं रही थी। वहाँ ये शबीर और आबद मिले हैं। शबीर डाला का ड्राइवर है, इसने कहा कि आओ मैं आपको डाला में छोड़ आता हूँ नारोवाल। हाँ, वो उनके साथ बैठ गई है। ये जब बहादुर अकबा उच्चा पिंड पहुँचे हैं तो इनकी नीयत में फतूर आ गया। साइड पे खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया है। नहीं, तीनों ने किया। वो शबीर होशियार चला के वो कैमरा देखकर कह रहा है कि मैंने नहीं किया, लेकिन दरअसल किया तीनों ने। तो जब उसने तीनों ने उसके साथ ज़्यादती की है तो उसने कहा कि अब मैं आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं अब आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो ये शबीर और दूसरे मुलजमान ने कहा कि यहाँ से जाओगी तो करवाओगी ना। तो फिर इसलिए उसी के दुपट्टे का फंदा बनाकर उसे कत्ल कर दिया। 21 और 22 मई की रात का हुआ है, हाँ पिछले साल का, क्योंकि 21 मई को रात 11 बजे मकतूला का फ़ोन बंद हो गया, मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। जैसे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये रात 11 बजे उस वक्त हुआ है। 21 और 22 की सुबह जो है तकरीबन 9-10 बजे दिन हमें डेड बॉडी मिल गई। सबसे ज़्यादा तो क्राइम सीन पे अगर बहुत ज़्यादा उसका बगौर मुलाजा करना चाहिए। क्राइम सीन को जो है ना, वो बड़ी मेन जगह क्राइम सीन होती है, वहाँ से सबूत मिल जाते हैं। मुल्ज़मान जो होते हैं वो समझते हैं कि हमारा यहाँ कोई सबूत नहीं, लेकिन क्राइम सीन पे वो अपना कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाते हैं। यानी कि जो क्राइम सीन होता है वो बड़ी अहमियत का, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का। अगर क्राइम सीन पे कोई मेहनत नहीं करता या उधर जोर नहीं देता तो उसे सबूत नहीं मिल सकेंगे। ये तो आपको कामयाबी मिली है कि आपने फोकस क्राइम जी ज़ाहिर, जब ये पता चला कि PFSA की रिपोर्ट आई और उसे पता चला कि इसके साथ रेप भी हुआ है, तो मुकदमा बहुत ज़्यादा हसास और संगीन नौयत का हो गया था। फौरी तौर पे अफसरान ने जो है टीमें बनाई हैं, जो भी मदद मांगी है वो दी है। हाँ, जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया गया, हमें मदद मिली अफसरान की तरफ से। बहुत शुक्रिया।